previous two lower segments. Para 2 + 1 आगे क्या बता रही हैं? With no miscarriage. ठीक है. Previous to lower section, last born child 9 years old. Previous two section. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. Last born child 9 years old. She is hepatitis B surface antigen positive. Her first day of the last menstrual period was on 8th of July 2021. She was admitted via outpatient department 1 day back for the evaluation and management of heavy menstrual bleeding for 3 months and vaginal discharge for 3 months. My patient had regular menstrual cycle of 4 to 5 days per 28 days with average menstrual flow with no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual or postcoital bleeding. But now for the last 3 months, she noticed a change in her menstrual cycle. Now she used. बेटा आपकी आवाज बीच में कट रही है, थोड़ा सा क्लियर. हाँ जी बताइए. Heavy menstrual bleeding and vaginal discharge for last 3 months. Yes, ma'am. जी. She noticed a change in her menstrual cycle for the last 3 months. Now she used to bleed for 7 to 8 days, followed by 20 to 24 bleeding-free days with heavy menstrual flow, taking 3 to 4 home meat pads per day associated with passage of cloth. Bleeding-free days are 20 to 22. Yes, ma'am. 20 to 24. 20 to 24. And she has to wake up once or twice at night to change. There is no history of menorrhea, menstrual or postcoital bleeding. No history of dysmenorrhea. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. Dyspareunia, intermenstrual or postcoital bleeding. Patient is not over her date. There is no history of mass in her abdomen, loss of weight, loss of appetite, any personal or family history of breast, colorectal, ovarian, endometrial or cervical malignancy. She is hepatitis B surface antigen positive, which was diagnosed 3 months back, and according to the patient, she went to a physician for its evaluation and some treatment was also given. But there is no history of heat or cold intolerance, weight gain, any low ending rise of temperature along with cough and sputum or any contact with tuberculosis patient. She denies having history of easy visibility, bleeding from any orifice of the body, or use of anticoagulants, use of intrauterine contraceptive device or any other drug use. My patient gives history of easy fatigability, lethargy, but no history of palpitations or shortness of breath. Her diet is inadequate in the form of meals as green leafy vegetables, fruits, pulses. She gives no history of injectable iron or blood transfusion. My patient has also complained of vaginal discharge, which is copious in amount, yellowish in color, foul smelling, and not associated with itching, fever, or any lower abdominal pain. And she has to keep pad throughout the day for this discharge. She is a non-smoker. Pap smear has never been taken. Couple never practiced any barrier method of contraception. There is no history of any urethral discharge in her husband or lumps in his perineal region. And she never took any treatment for this discharge. Regarding the treatment for her heavy menstrual bleeding, she went to a local doctor during these 3 months and she was given some oral medication to be taken for 4 to 5 days, which she took with compliance, and the problem was relieved temporarily, but then started again. The couple has been living together since their marriage, and having initially during the last 9 years, they have quite a frequency of once or twice per week, but now for the last 3 months, it has reduced to once per 15 days due to this discharge and bleeding. Her husband is 35 years of age, laborer by profession. There is no history of mumps in his childhood, diabetes, mellitus, hypertension, any abdominal or pelvic surgery. Husband's semen analysis was done 2 years back, which according to the patient was normal, and there is no family history of
guilty. My patient denies having headache, blurring of vision, bilateral nipple discharge, heat or cold intolerance, weight gain, acne, hirsutism, hot flushes, a feeling of burning sensation in vagina, and her menstrual cycle has already been described. According to the patient, she also went for the evaluation of her fertility 2 years back to some local doctor, where husband semen analysis was done, which according to the patient was normal, and she was also given ovulation induction twice, and the egg was formed, but patient didn't conceive. Tubal status has never been evaluated. Now she presented to the Index Hospital for the evaluation of her heavy menstrual bleeding and vaginal discharge. She has been admitted in ward. Her blood pressure is being checked. Blood and urine investigations along with the pelvic ultrasound has been done, and no further management plan has been discussed with my patient yet. Regarding her obstetric history, her first gestation was a full-term pregnancy, and that was a twin pregnancy. She had elective lower cervical C-section at some private hospital under general anesthesia, and having 2 females, 12 years old, alive and healthy, and setting was also elective lower cervical C-section due to previous one, having male baby, having 3 alive patients, breastfed and vaccinated, and there was no any antenatal, intrapartum or postnatal complications. Regarding her gynecological history, her age of menarche is 13 years, and rest of the history has already been described. Her medical history, she is non-hypertensive, non-diabetic, with no history of TB, asthma, or ischemic heart disease. Hepatitis B sepsis antigen, I have already. So her physical history is unremarkable. In her family, आपकी आवाज बीच में बंद हो जाती है डॉक्टर किरण, अपना माइक जरा सही कर लीजिए। जी मैम अब आ रही? जी जी आ रही है। And she is the एक इंफॉर्मेशन जरा मुझे बता दें कि हर सेकंड मैरिज इज सिंस व्हेन, कब कितने अरसे से इसकी सेकंड मैरिज है? मैम फीमेल की फर्स्ट है, हस्बैंड की सेकंड है, लेकिन मैं पूछना हस्बैंड की सेकंड है और इसकी ये फर्स्ट है जो इसकी चल रही है। ठीक है ठीक है, चलें आगे चलें। She is non-addict with having good appetite and sleep with no known drug allergy. They live in a rented house of 5 marla. Basic necessities of life are met with difficulty. On general physical examination, a 32 years old lady is sitting comfortably on the couch while orienting in time, pace, and person, has body mass index of 23 kg per meter square, blood pressure of 150 by 80 mm of mercury, pulse of 8 beats per minute, regular in volume and BMI आपने कितना बताया? Man 23. 23, ठीक है. And temperature of 98 degrees Fahrenheit. She is pale. There is no jaundice, edema, cyanosis. Orodental hygiene is not satisfactory. Thyroid is not enlarged. All accessible lymph nodes are not palpable. Both breasts are normal shape, normal areola and nipple with no mass palpable in any quadrant of breast. Apple's beat is fifth intercostal space with both heart sounds are audible with no added sound. The patient has normal vesicular breathing with no added sound. On abdominal examination, abdomen is flabby with central place umbilicus. There are no visible veins, stria, and phalangeal scar is seen. Patient abdomen is soft, non-tender, and with no viscerally elastic. On local examination of the pelvis, vulva is normal looking. Speculum examination shows copious vaginal discharge. High vaginal swab was taken, and a 5 x 5 centimeter globular red growth is seen protruding from the cervical os with regular margins, smooth surface, with areas of hemorrhage seen at the base, and it is covered by discharge, firm in consistency. Cervical rim was felt all around the cervix, and the upper limit of the stalk was not reachable. Bimanual examination of the uterus shows the uterus approximately 8 to 10 weeks size. Right adnexus clear, left adnexus cannot be assessed due to tenderness.
जी, अच्छा, चले इसको समराइज करें जरा केस को। 32 years, para 2+1 with no miscarriage, previous to lower second C-section, with heavy menstrual bleeding for 3 months, vaginal discharge for 3 months, pallor positive, hepatitis B surface antigen positive, local speculum examination shows with yellowish vaginal discharge. A 5 into 5 centimeter globular red growth is seen protruding from the cervical os with regular margins, smooth surface with areas of hemorrhage seen on the base, firm in consistency. Upper limit of the stalk is not reachable. Cervical rim was felt all around the cervix. Uterus is approximately 8 to 10 weeks size, mobile, non-tender. Right adnexa clear. Left adnexa cannot be assessed. So there was localized tenderness on the right adnexa, left adnexa. Yes, ma'am. क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है आपका? मैम ऑन द बेसिस अच्छा मैम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मैम ग्रोथ का जो है ना मेरा वो था फाइब्रोइड पॉलिप, एंडोमेट्रियल पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप, कोरोनिक यूट्राइन इंवर्जन एंड सीएस सर्विस। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये जो इतना बड़ा इसका मैस है 5 into 5 सेंटीमीटर का, पेशेंट को सिर्फ विजाइनल डिस्चार्ज और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट थी, जबकि बाकी कोई उसको डिस्मेनोरिया नहीं है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं है, डिस्पेरोनिया नहीं है, पोस्ट कॉटल ब्लीडिंग नहीं है। दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि इतना बड़ा मैस जब प्रोट्यूट कर रहा होता है इन द अपर विजाइना चाहे वो, तो उसमें ये सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। एंड शी हैज़ अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जस्ट 3 months। तो इसमें जरा कुछ आप एक्सप्लेन करेंगी? मैम मैंने ना पॉलिप देखने के बाद पेशेंट से बहुत इवेल्युएट किया, स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन बार बार मैंने इवेल्युएट किया, लेकिन पेशेंट डिनाई करी थी कि मुझे कोई पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कभी नहीं हुई, 3 months में यही हुआ। मैंने बहुत प्रूव किया। अब जो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है हिस्ट्री के बाद और जो बनता है एग्जामिनेशन के बाद, उसमें कुछ ना कुछ फर्क होता है। तो जो आपका हिस्ट्री के बाद बना वो तो ज़ाहिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की और भी बहुत सारी रीजंस उसमें आ जाएंगी, उसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका बना आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन, उस पे विल यू लाइक टू शॉर्ट लिस्ट योर लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस? यस मैम। तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे मैम? फाइब्रोइड पॉलिप एंड मैम सर्वाइकल पॉलिप एंड मैम सीएस सर्विक्स, बट सीएस सर्विक्स भी मैम रूल यस मैम डिस्चार्ज की बेस पर मैं इसको रखूंगी। तो फाइब्रोइड पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप एंड सीएस सर्विक्स। व्हिच वन सीम्स मोर लाइकली? फाइब्रोइड पॉलिप। आपकी जो एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हैं उस पे आपका ज्यादा लाइकली डायग्नोसिस क्या है? मैम फाइब्रोइड पॉलिप। Fibroid polyp, but arising from where? From cervix or from endometrium? Ma'am, I can't comment because upper limit of the stalk was not reachable. So at present, I can't comment on it. But afterwards, I can comment in examination under anesthesia. अब जो आपने सीए सर्विक्स वाली जो एक डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन वो आपने डाली थी, जबकि स्पेकुलम एग्जामिनेशन आप कर चुके थे। डू यू थिंक दैट अ circumscribed mass of 5 into 5 centimeter which is protruding into the upper vagina can still be a case of CA cervix? No ma'am. Ma'am, the cervical rim was felt basically all around the cervix. Areas of hemorrhage were seen at the base, on the base. So most probably that discharge was from that. So yes, ma'am, I couldn't cause. So what would be the link of this purulent discharge with this mass? जो कि आपके ख्याल में फाइब्रोइड पॉलिप है। अभी हम साइट ऑफ ओरिजिन की बात नहीं कर रहे, but this is fibroid polyp based on the typical examination finding that it is circumscribed, it is firm in consistency, and it has a broad pedicle.
तो इसमें इसका लिंक क्या है विद द विजाइनल डिस्चार्ज, जो जाहिर है डेफिनेटली अगर आप हिस्ट्री के ऊपर ही बनाते तो इसमें सीए सर्विक्स वाली चीज भी आ जाती इसकी टिपिकल फाइंडिंग्स पे, जो कि पुरुलेंट डिस्चार्ज इसको है। तो इसमें डिस्चार्ज के क्या रीजन है? कैन फाइब्रोइड पॉलिप बी अ कॉज फॉर दिस विजाइनल डिस्चार्ज? Yes, ma'am, when it is infected necrosed. And ma'am, areas for hemorrhage. Due to surface necrosis and superadded infection. ठीक है, जो कि इसमें हो सकता है और ये इसकी एक वजह होगी। अच्छा, अब इसमें आप बेसिकली व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशन वुड यू गो फॉर? क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर जो आप बताओगे उसमें और एक चीज आपने और जो नहीं भूलनी इसमें, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंड ऑन बीच में टाइम टू टाइम ये होती रही, बट अलोंग विद दिस ऑल दिस कंप्लेंट्स जिनके साथ उसने अभी प्रेजेंट किया, अनदर प्रॉब्लम वुड बी टू मेंशन वुड बी सेकेंडरी सब फर्टिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन की लाइन क्या होगी? मैम, आई वांट कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप विद आर स्ट्रक्चर, complete blood count with date for hemoglobin in gram per deciliter, total lymphocyte count in cubic mm, platelet count in cubic mm. Ma'am, इस patient की hemoglobin 12 थी, but patient was pale, so I would like to repeat her hemoglobin. Okay. And fasting or random blood sugar level, whichever is available. आप इसकी रिपीट जो करोगे, इसकी सीबीसी रिपीट करोगे, उसमें एक तो ये डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्चुअल रिपोर्ट एंड द क्लिनिकली ऑब्वियस स्पेलर, और दूसरी चीज इस पे भी करोगे कि शी वाज हैविंग पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ठीक है, इन दो चीजों के बेस पे उसको जस्टिफाई करोगे रिपीट करना। चलो आगे चलें। मैम, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, और मैडम ये बात मैंने कंफर्म करनी थी कि हमारे यहाँ नहीं होता, बस एक ही हमने जो हॉस्पिटल की होती है, तो क्या मैं ये मांगूंगी कि पहले मुझे एलाइजा से कंफर्मेशन दी? हाँ, आप उसको कंफर्म तो करोगे। कंफर्मेशन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो उसकी कंफर्मेशन तो करनी है, ठीक है, बिकॉज एंटीबॉडीज नहीं है, ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको आप कंफर्म करोगे। Yes, ma'am. And ma'am, that was confirmed. So I want a liver function test for bilirubin in milligram per deciliter, ALT and AST international units per ml, and PT and APT. I want anti-HCV antibody, HIV status, and COVID PCR. I want midstream urine complete examination with date for microscopy for pulses and biochemistry for sugar and protein. Regarding her specific investigations, I want urine for pregnancy test and pap smear if ever done. Urine for pregnancy test? Ma'am, although she was not overdue her date, but her LMP was on 8th of July. And today is 7th, but 2-3 days back. So even then, I want to. If LMP was 8th July, उसका menstrual cycle कितना बनता है? उसका तकरीबन 7-8 days के लिए bleed करती है, 20-24 days के लिए वो। तो longest cycle would be 8 + 24, यानी ये बनेगा तकरीबन 32 days का cycle. तो if she had her last menstrual period on 8th July, today is 7th August. So would you still go for urine for pregnancy test? And do you expect it to be positive even in a case she was pregnant? उसके उस सूरत में भी urine for pregnancy test positive आ जाएगा क्या? No, ma'am, I'm not. इसको आप बिल्कुल justify नहीं कर सकते, ठीक है? Yes, तो urine for pregnancy test इसमें करवाने की कोई वजह नहीं बनती। Yes, ma'am. And ma'am, I have pap smear and ma'am, high resolute. क्या करेंगे आप? Ma'am, if ever done. पैप स्मीयर आप करवाओगे? यस मैम, मैं नहीं करवाऊंगी बिकॉज इस टाइम तो पॉलिप है, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग है, बट अगर उसका लाइफ में पहले कभी हुआ है
तो आपकी अगर नहीं हुआ तो देखो पेप्समेयर कहाँ से लेना है, हमने कोई मैथ से तो नहीं लेना। नो मैम। पेप्समेयर मीन्स कि आप उसकी जो एंडो एक्टो सर्विक्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है वहां से आपने स्मेयर। यस मैम। आप तो मैम उसको पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैम अब नहीं, मैं मेरे प्लान में नहीं है, लेकिन अब उसको पहले कभी लाइफ में हुआ है। अच्छा सॉरी, ठीक है, कि मतलब आप ये यस पूछोगे कि पहले कभी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, यस मैम। तो यस यू वुड मैम। आस्क फॉर इट। यस मैम। ठीक है, चले। एंड लेकिन मैडम ये आई देखिए वांट। कि आपके ये चीज आपने पूछनी थी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में, ये आप इन्वेस्टिगेशन में अभी तो नहीं बताओगे। इन्वेस्टिगेशन में आपने वो चीजें बतानी है जो आपका इन्वेस्टिगेशन का प्लान है। ओके मैम। अभी आप नहीं बता रहे हो, अभी आप ये जो हिस्ट्री लेने वाली चीज है ये आपने पूछनी है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में। तो एक यस हिस्ट्री वाली चीज के पेप्स में पहले कभी हुआ या ना हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन के प्लान में तो नहीं आएगा। यस तो मैम। ऑलरेडी यू मस्ट हैव टेकन द हिस्ट्री। यस मैम। ओके चले। मैम, I want husband semen analysis with date हम्म, for volume count हम्म, per count in million per count in million per ml, concentration हाँ, per ejaculate, हम्म, pH, mortality, हम्म, morphology, हम्म, and WBC. ठीक And है। WBC. I हम्म, want day 21 serum progesterone. And I want thyroid profile for thyroid stimulating hormone T3 and T4. Ma'am, for ये क्वेश्चन देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। इसमें उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है फॉर लास्ट 3 मंथ्स, जस्ट विद द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ 3 मंथ्स शी इज हैविंग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड देयर इज एन अपीरेंट कॉज फॉर इट। इतना बड़ा पॉलिप, फाइब्रोइड पॉलिप जो है वो उसकी एक अपीरेंटली एक रीजन है उसकी सब फर्टिलिटी की। ठीक है, लास्ट वन चाइल्ड वाज 9 years बैक एंड सिंस देन शी वाज नॉट हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम एक्सेप्ट फॉर ये जो है इसका बाकी इसका सिर्फ सीमन एनालिसिस हुआ। चाहे हम इसमें ये कहते हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कैन स्टिल बी अ कॉज फॉर सब फर्टिलिटी एंड इवन द मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस, तो फिर भी जब ये केस ऐसा हो कि उसमें अपेरेंटली आपको एक रीजन मिल गई, probably she was having it quite a time beforehand, इससे पहले ये जो इसका 3 महीने से इसके सिम्टम्स पहले का ये प्रॉब्लम चल रहा हो, that can contribute to सब fertility। लेकिन इसमें इसलिए इसमें थायराइड डिसफंक्शन का डायरेक्ट रोल नहीं बनता। थायराइड फंक्शन हम उस वक्त असेस करते हैं या बाकी सब चीजें उसके साइंस या तो साइन सिम्टम्स हो या इडियोपैथिक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो। ठीक है, इसमें अनएक्सप्लेन्ड नहीं है, देयर इज अपेरेंटली अ रीजन फॉर इट। इसलिए इसमें अब हम सिर्फ ये लास्ट वन चाइल्ड इज 9 years बैक, तो हम इसके थायराइड डिसफंक्शन अब 9 years से थायराइड डिसफंक्शन चल रहे हो तो डेफिनेटली डजंट रिमेन लाइक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। पहले सब क्लिनिकल होता है फिर उसके बाद क्लिनिकल में आ जाता है। तो इसके अलावा जो है इसलिए इसमें डायरेक्ट उसकी रीजन नहीं बनी इन प्रेजेंस ऑफ एन अपेरेंटली रीजन फॉर सब फर्टिलिटी, इसलिए इसमें अभी आप इसको मेंशन ना करें, उसको जस्टिफिकेशन उसकी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका साइकिल इरेगुलर नहीं हुआ। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की एक डेफिनेट रीजन, एक रीजन कम से कम जो है इसकी एक पार्टनर की रीजन तो मौजूद है ना कि ये फाइब्रोइड पॉलिप है, so that can be a cause for subfertility as well along with the cause for heavy menstrual bleeding, वो तो डेफिनेटली उसकी है ही है, तो इसलिए अभी इसको स्किप करते हैं। यस मैम। ठीक है, और हस्बैंड एनालिसिस हो गया और मैम बाकी उसकी ट्यूबल स्टेटस हैज नेवर बीन इवैल्यूएटेड, सो मैडम उसमें एसएसटी और वो और आई वांट रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ओव्यूलेशन इंडक्शन व्हिच शी हैज टेकन। शी हैज जस्ट टेकन इट ट्वाइस, ओव्यूलेशन इंडक्शन शी हैज जस्ट टेकन ट्वाइस, और ये हमें नहीं पता कि उसने कितना अरसा पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन दी थी। मैम इसका रिकॉर्ड ना मांगू, रिकॉर्ड मांगने
मैं मांग नहीं मांग तो सकते हो, लेकिन पेशेंट से तो आप खुद भी पूछ सकते थे कि लास्ट ओवुलेशन इंडक्शन जो उसने 2 दफा ओवुलेशन इंडक्शन दी, लास्ट टाइम उसकी ओवुलेशन इंडक्शन उसने कितना अरसा पहले ली थी। ये तो मैं 2 पेशेंट years डॉक्टर back। भी बता देगा, ये जुबानी भी बता देगा रिकॉर्ड के बगैर भी। ओके मैम। ठीक है, मैम और फॉर ये भी एन पेशेंट बता देता है कि उसमें जो उसकी मॉनिटरिंग हुई उस पे क्या था। ओके मैम ठीक फॉर है, और एनेस्थीसिया इसके अलावा फिटनेस। और क्या टेस्ट करवाएंगे आप? मैम फॉर एनेस्थीसिया फिटनेस रीनल फंक्शन टेस्ट एंड चेस्ट एक्स-रे हो विद गया एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन। फिटनेस के लिए तो जब बात होगी ना एंड मैडम आई इन्वेस्टिगेशंस में और क्या चीजें रहती? मैम एब्डोमिनोपेल्विक स्कैन for status of the liver, size of the uterus, endometrial thickness, and any endomyometrial lesion, and ovarian pathology. और अल्ट्रासाउंड के अलावा और क्या टेस्ट रह गए इसके? और मैम इसका मैम मेरे माइंड में नहीं है, और मेरे ख्याल में तो एनीवन अमंग द ऑडियंस, जो बाकी सुनने वाले हैं, उनके ख्याल में और इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी? Ma'am, she must have the high vagina swab. oh yes ma'am, Yes, sorry, yes, she has purulent vaginal discharge, so she must have it. yes ma'am, Okay. forgot. ठीक है, HVS हो गया, और इसके अलावा मैम एंडोमेट्रियल बायोप्सी नहीं, वो बाद में डिस्कस होगी, बिकॉज इफ वी आर प्लानिंग फॉर द सर्जरी एंड वी शुड, तो उसमें ही फिर साथ ये सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। व्हाट एल्स? Ma'am, whether she has any tubal patency test done before? नहीं, अभी नहीं। Tubal. इसका अभी तक अपना माइक को सही कर दीजिए प्लीज। अच्छा, अब इसकी जो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट है अभी तक नहीं हुआ, और अब जब तक हम इसकी फाइनल मैनेजमेंट इस प्रॉब्लम की नहीं करते, हम हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी इसकी अभी नहीं करेंगे। इसको हम बाद में डिफर कर देंगे, बट दैट वुड बी इन आवर प्लान। व्हाट एल्स? मैम सलाइन इंश्योरेंस सोनोग्राफी। हाँ, सलाइन इंश्योरेंस हस्बैंड के सीमन एनालिसिस तो हो गया ना। और देखो, जब हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पेशेंट को एज अ होल हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, और इसमें अब इन्होंने हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का कंफर्म तो करा लिया, और कंफर्म हो भी गया। LFTs, do you think that LFTs are enough? वो भी, और इसके अलावा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम इसका PCR करवाएं। यस मैम, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इनका PCR करवाएं, so as to know the viral status and viral load of the hepatitis B virus. ये जरूरी होता है PCR, so as to determine whether she needs therapy or not, लाइव वायरस है या नहीं है। और इसमें हम पहले क्वालिटेटिव करवाते हैं, जस्ट टू नो कि लाइव वायरस की मौजूदगी को देखने के लिए, एंड इफ क्वालिटेटिव इज पॉजिटिव देन वी गो फॉर द क्वांटिटेटिव जस्ट टू नो द वायरल लोड, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि हमने इसको थेरेपी देनी है या नहीं देनी। और इसलिए कि आप इसमें जो बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं एट द एंड ऑफ द पेशेंट एंड हर फैमिली, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन टू द कपल और उनके फैमिली मेंबर्स को भी, because this comes then it comes in the community health objectives. इसका फिर डायरेक्ट गायनी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, बट डेफिनेटली इट हैज इम्पैक्ट ऑन द अदर हेल्थ इश्यूज। तो ये भी आपने इसका करवाना होगा। HVS हो गया, जो एडिशनल इसका हो गया, बाकी PT, APTT, कोएगुलेशन प्रोफाइल सब कुछ हुआ होगा। अब इसमें हम आते हैं फाइनल मैनेजमेंट की तरफ। तो अब इसकी जो मैनेजमेंट है इसके बारे में जरा बता दीजिए डॉक्टर किरण। Ma'am, I would like to complete my workup. I would like to complete my workup. First, I will keep the patient admitted. I will consult the patient about her diagnosis. That most probably the cause is growth, which is causing her symptoms. So it has to be removed and it needs surgery.
and in order to manage my case, I want abdominal pelvic ultrasound. मैम abdominal pelvic आपकी बेटा आवाज जो है वो बहुत टूट रही है बीच में, आप इसको क्या एक्सप्लेन करेंगी? एक तो डायग्नोसिस के बारे में आपने बता दिया, और ma'am, which is the cause of her symptoms, so it needs surgery, and most probably it is the cause of her subfertility. ठीक है, और मैम बस यही इसको एक्सप्लेन करूंगी, और फिर और then I would complete my workup, and what else you want to complete in your workup? मैम हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपीट कराऊंगी, वो तो हो गया ना, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो तो हो गया। एंड मैडम हाई विजाइनल स्वैप, उसको भी मैंने वो भी हो गया, वो तो हमने सारा मेंशन कर दिया। अब और इसके अलावा आप क्या वर्कअप में कंप्लीट करेंगी? मैम बस हस्बैंड सीमेन एनालिसिस ही है, एंड आई वांट एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन इन ऑर्डर टू मैनेज माय केस। ठीक है, वो भी हो गया। और एंड मैम बस यही रह गया है, बाकी तो क्या। अच्छा, एक आपने चीज बताई थी कि इन्वेस्टिगेशंस फॉर एनेस्थीसिया, क्या इन सारे टेस्टों के अलावा भी आपको कुछ चाहिए टेस्ट फॉर एनेस्थीसिया? मैम रीनल फंक्शन टेस्ट एंड मैम चेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट क्यों? मैम एनेस्थीसिया फिटनेस का पार्ट नहीं। एनेस्थीसिया फिटनेस का रीनल फंक्शन टेस्ट तो एक हिस्सा नहीं होते। मैम चेस्ट एक्सरे कराऊंगी ना। वो भी नहीं, पेशेंट इज जस्ट 32 years old, why you need chest x-ray? अनलेस के पेशेंट की कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी या कोई कार्डियक इशू हो तो हो, ना ही ईसीजी ना ही चेस्ट एक्सरे आर नीडेड एट 32 years of age। मैम बस फिर तो और तो कुछ नहीं, कंप्लीट है ना, और ना ही इसके आरएफटीज की जरूरत है। यस मैम। ठीक है, चलो मैम अब इसका जो स्कैन था ना, उसके ऊपर मैम बल्कि यूट्रस थी, और जो उसके लोकलाइज टेंडरनेस थी ना, वहाँ पर उन्होंने दिया था 6 into 7 centimeter लार्ज सिस्ट विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्रिस इन लेफ्ट एडनेक्सा, मोस्ट 6 into 7 centimeter की सिस्ट थी। यस मैम, ठीक है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्रिस, मोस्ट लाइकली हेमरेजिक सिस्ट। अच्छा, और मैं मुझे बाद में मैं ओके, व्हेन डिड शी हैव हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसका था 8 जुलाई को, ऐसा ही था ना? यस मैम। एंड नाउ शी इज ऑलमोस्ट इन प्री मेंस्ट्रुअल फेज। यस मैम। ठीक है ना? तो उसमें ये उनकी पॉसिबिलिटी थी फॉर हेमरेजिक सिस्ट। ठीक है, नाउ आफ्टर नोइंग दिस रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? मैम इसमें ना एक पॉइंट मैंने भी पूछना था कि अगर मैं इसको असेस कर लेती, वैसे तो पेशेंट इतनी टेंडर थी कि उसने मुझे असेस नहीं करने दिया, अगर मुझे फील हो जाता कि यहाँ पर फुलनेस है, तो फिर मैं अपने मैथ के दीदीज अलग रखती ना, फिर मैं रखती हेमरेजिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा, बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर विच मे बी डर्मोइड, मैलिग्नेंट हेपेटिस डेफिनेटली आपको अगर सिस्ट फील हो जाती, जाहिर है अगर पेशेंट बहुत ज्यादा टेंडर हो तो उसको बहुत ज्यादा आप उस तरह से कोशिश नहीं कर सकते बार बार एग्जामिन करने की, यू कैन नॉट हर्ट द पेशेंट। तो उसमें अगर इतनी एक्यूटली पेशेंट टेंडर हो, और टेंडरनेस किस वजह, किस किस्म की ओवेरियन सिस्ट में टेंडरनेस होती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर। और ये कि इसमें क्योंकि इवन इफ अगर आप असेस नहीं भी कर पाते, फिर भी जब ये डिस्कशन होती है तो आपको ये बताना पड़ेगा फिर भी कि व्हाई शी इज हैविंग टेंडरनेस इन द लेफ्ट एडनेक्सा। अगर आपने एक एडनेक्सा फील कर लिया और वो ठीक है, लेकिन लेफ्ट एडनेक्सा में आपको टेंडरनेस फील हुई एंड यू आर नॉट एबल टू पैल्पेट डीपली सो एज टू डिटेक्ट एनी मैस, एडनेक्सल मैस, तो उसकी वजह क्या है? डेफिनेटली दिस यू नीड टू एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो ये तो आपको फिर भी बताना पड़ेगा, चाहे आप फील ना भी करो, फिर भी आपको इस टेंडरनेस की वजह बतानी पड़ेगी। मैम हेमरेजिक सिस्ट में भी टेंडर, उसमें बेसिकली पेशेंट से भी आप पूछोगे कि ये जो टेंडरनेस है क्या उसको एक पेन की तरह से फील होती है या नहीं होती है। उसको तो कोई डिस्मेनोरिया भी नहीं है, और ना ही आपकी हिस्ट्री में कहीं पे भी जो है वो उसमें उसका जिक्र आया कहीं पे लोअर एब्डोमिनल पेन का।
मैम है भी नहीं उसको, उसने कभी कोई एनेस्थीसिया नहीं लिया, ओरल भी नहीं लिया, बट ऑन एग्जामिनेशन शी वाज टेंडर, यस जबकि हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो साइन वाज पॉजिटिव बट देयर वर नो सिम्टम्स। यस यस मैम। अब हेमरेजिक सिस्ट जो इतनी टेंडर हो वो डेफिनेटली पेन भी करती है पेशेंट को, पेशेंट को पेन फील भी होती है, टेंडरनेस तो जो है सो है वो तो होगी ही। तो इसमें आपको इसकी रीजन बतानी पड़ेगी, बट प्रोबेबली यू कैन गिव अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रोसिस भी और हेमरेजिक सिस्ट भी। इससे ज्यादा कुछ बताना, क्योंकि सिंपल ओवेरियन सिस्ट में अमूमन ये टेंडरनेस नहीं होती, तो टेंडरनेस ज्यादा से ज्यादा एंडोमेट्रोसिस में, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट में या फिर हेमरेजिक सिस्ट में हो सकती है। तो यही दो होंगे जो कि आपके उसमें अगर आपसे वजह पूछी जाती है कि ये टेंडर क्यों है, तो यही दो पॉसिबिलिटीज आप बताएंगे और उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी बताएंगे, उसमें ये नहीं कि कोई उसमें डेफिनेटली हो, क्योंकि इसको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स नहीं है। और ऐसा अगर हो भी तो इसमें इस तरह की टेंडरनेस और फुलनेस आपको फील अमूमन नहीं होती, अगर ऐसा हो भी तो। और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोई यूरिटेरिक कॉलिक है या कुछ भी और है तो उसमें भी पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो इसमें जस्टिफाइबल रीजन इसकी होगी वो एंडोमेट्रोमा या हेमरेजिक सिस्ट ही होगी। एंड आफ्टर नोइंग द रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड यू विल स्टिल स्टिक टू दिस डायग्नोसिस, अगरचे इसमें अब डेब्री की मौजूदगी में हेमरेजिक और एंडोमेट्रोटिक सिस्ट ही इसकी पॉसिबल कॉजेस बनती हैं, इसमें और कोई ऐसी वजह नहीं बनती। एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट में अमूमन डेब्री नहीं होती। तो अब आपकी क्या कोई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चेंज हो जाएगी अगर आपको फर्ज किया, ये जो सवाल था आपका इनिशियली कि अगर आपको सिस्ट फील हो जाती तो इसमें इन्वेस्टिगेशन आप क्या कुछ और करवाना चाहती? Yes, ma'am. Then I would like to do tumor markers for this patient, which include LDH, alpha-fetoprotein, beta-HCG, and CA-125, and I need CT scan for extrapelvic extent of the disease and for lymph node involvement. लेकिन आपको अगर सिस्ट फील भी होती, पेशेंट की एज है 32 ईयर्स, ट्यूमर मार्कर्स तो होते हैं टू एक्सक्लूड और टू इंडिकेट मेलिग्नेंसी। तो विदाउट नोइंग द रिपोर्ट ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड, can you directly go for this tumor markers? Tumor markers cost effective तो नहीं होते, and the patient's husband is a laborer, ऐसा ही है ना? मैं हॉस्पिटल से अरेंज करूंगी, मैं हॉस्पिटल में से अरेंज कर लूंगी। लेकिन आपने इसलिए 1 to 5 भी करवाया, इसमें बहुत सारे और भी ट्यूमर मार्कर सब के सब करवाए। Because मैम इसमें होना ये चाहिए कि एज और उसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर तो आपको लगता है कि दिस सीम्स मोर लाइकली टू बी मेलिग्नेंट तो फिर तो ट्यूमर मार्कर आप पहले करवा लें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसमें ट्यूमर मार्कर करवाने की जरूरत नहीं है। देखो, हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन, जो हमारा एक स्टाइल है वो ये कि हम हर किस्म के टेस्ट बेस लाइन के तौर पे ही लेते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जस्ट बाय असम्पशंस। बट जो आपकी गाइडलाइंस भी जो हैं, अब देखो अगर आप गाइडलाइन को रिव्यू करो, अगरचे हम गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं भी कर रहे होते, लेकिन अगर आप कभी गाइडलाइन पे गौर करो तो आपको ये अंदाजा होगा कि जब तक एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन नहीं होती किसी चीज की, उसमें किसी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाया जाता। और इसलिए हम सिर्फ एक इसमें सिर्फ डेब्री का जिक्र है। इसमें साइज 6 into 7 सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट के उसमें कैटेगरी में आ जाता है एट अ यंग रिप्रोडक्टिव एज। तो उसमें हम ट्यूमर मार्कर्स क्यों करवाएंगे, ये फिर थोड़ा सा जस्टिफाइबल शायद ना हो। मैम तो हाँ जी मैम देखें, मुझे एग्जामिनर स्कैन नहीं देना, मेरी फाइंडिंग की बेस पर देयर इज एन ओवेरियन मैप जो कि मेरे से असेस नहीं हुआ। अगर वो मैं तो ये बात कर रही हूँ कि अगर मैं उसको असेस कर लेती, अगर वो मतलब असेस ना होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाद दफा एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट दैट कैन गो अनडिटेक्टेड इवन ऑन योर पेल्विक बाय मैनुअल एग्जामिनेशन,
उसमें वो कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं होता। यूट्रस साइज आपको पता होना चाहिए, विजाइनल पैथोलॉजी, सर्वाइकल पैथोलॉजी ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एडनेक्सल मैस ऑफ स्मॉल साइज कैन गो अनडिटेक्टेड। लेकिन ये है कि अब अल्ट्रासाउंड पे ये मैस आ गया विच वेंट अनडिटेक्टेड ड्यू टू टेंडरनेस ऑफ द पेशेंट। टेंडरनेस की सूरत में आपने उसको ज्यादा डीप पैल्पेट नहीं किया इन एन अटेम्प्ट नॉट टू हर्ट द पेशेंट, जो ठीक किया। और अब इस पे आ गया 6 into 7 सेंटीमीटर मैस है जो कि विद डेब्री। इसमें और कोई फीचर नहीं बताई हुई, डॉपलर फ्लो नहीं बताया हुआ, विच आर ऑल्सो अ मार्कर ऑफ इंडिकेटिंग द मेलिग्नेंसी। तो इसमें सिर्फ डेब्री कलेक्शन है, और डेब्री कलेक्शन जब होती है तो उसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड या ज्यादा जो सस्पेक्टेड डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब हेमरेजिक सिस्ट हो या एंडोमेट्रोटिक सिस्ट हो, उसमें ट्यूमर मार्कर्स का क्या रोल है, और अगर फर्ज किया आप फिर भी ट्यूमर मार्कर करवाना चाहते हो तो विच ट्यूमर यू वांट टू रूल आउट इन द प्रेजेंस ऑफ दीज पैरामीटर्स ऑन अल्ट्रासाउंड। मैम अगर डेब्रिस है तो फिर मैडम हेमरेजिक और एंडोमेट्रियोमा पे तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, तो फिर इसमें CA 1 to 5 का क्या रोल है, वो तो वैसे ही थोड़ा सा रेज्ड आएगा। यस मैम, तो बॉर्डर लाइन रेज्ड वैसे ही होगा। सो दिस विल कंफ्यूज द पिक्चर मोर। यस मैम, ठीक है, क्योंकि उसकी एज मेलिग्नेंसी वाली नहीं है। मतलब हम एक कॉमन उसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, दो रेयरली मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स कैन बी इवन इन एडोलेसेंट एज भी, लेकिन फिर भी आपने ज्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन पे ज्यादा आपने फोकस करना होता है। तो इसमें रोल ऑफ ट्यूमर मार्कर इज स्टिल डाउटफुल इन माय ओपिनियन, क्योंकि डायरेक्टली उसकी जस्टिफिकेशन उस तरह से नहीं बनती। करने को तो फिर हम ये भी कह सकते हैं अच्छा CT स्कैन भी कर लें, MRI भी कर लें, वो तो बहुत कुछ है फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए, बट स्टिल उसमें कोई डायरेक्ट जस्टिफिकेशन वाली बात जो है ना वो बात नहीं बनती। अब अगर हम ये वजह बताते हैं या ये हम रीजन बताते हैं कि ट्यूमर मार्कर मैं इसलिए इसमें करवा लूंगी कि ये हॉस्पिटल से फ्री होते हैं, तो हॉस्पिटल का फ्री इज फ्री फॉर पेशेंट, नॉट फ्री फॉर हॉस्पिटल, नॉट फ्री फॉर द स्टेट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी कॉस्ट को अफोर्ड कर रहा होता है। तो हॉस्पिटल के भी फंड्स जो हैं वो हमें ये भी देखना चाहिए कि आर वी वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज फॉर एन अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। So, in my opinion, you can hold the tumor markers, but you have to follow this ovarian cyst because this still comes in the functional ovarian cyst limit. Yes. और इसको फिर आपने फॉलो करना होगा बाय रिपीट स्कैन, और इसको खास तौर पे हम फॉलो करते हैं आफ्टर द पीरियड्स आर ओवर, क्योंकि एक अनरप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल जिसमें जो है वो हेमरेज हो सकता है, that can be resolved after the periods are over or after 6 weeks period time, लेकिन जब भी करना होगा पीरियड के बाद ही करना होगा। तो इसलिए इसमें जो ज्यादा आपकी जो होगी, और 6 हफ्ते डिले करने से कोई मेलिग्नेंसी ऐसी नहीं है जो कि फास्ट फॉरवर्ड चली जाए, जो कि बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेलिग्नेंसी के उस पे रेट ऑफ प्रोग्रेशन पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन होती है। अच्छा मैम, इसका then I will manage the case with multidisciplinary team approach involving अच्छा, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आप करोगे इसमें? यस मैम। क्या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में आपने क्या करना है? मैम एनेस्थेटिस्ट एंड हिस्टोपैथोलॉजिस्ट एंड माइसेल्फ। तो डू यू थिंक दैट इफ यू आर प्लानिंग फॉर सर्जरी then definitely an anesthetist is required? उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच वाली तो कोई बात ही नहीं है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच तब होती है जब बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलिटी के कंसल्टेंट मिल के उसको मैनेज कर रहे होते हैं उस डिजीज को जो उस पेशेंट में हो। एनेस्थेटिस्ट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर अ सर्जिकल प्रोसेस। मैम शी इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, तो मैं फिजिशियन को इन्वॉल्व करूंगी और मैम हिस्टोपैथोलॉजी है, फिजिशियन को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, उनकी ओपिनियन ले सकते हो, बट फॉर टाइम बीइंग इफ LFTs आर नॉर्मल, लिवर स्कैन नॉर्मल आ गया, आपने PCR तो करवाया ही नहीं है, सपोज PCR पॉजिटिव भी आ जाता है, even then you have not to start the treatment for hepatitis B virus antigens
अभी स्ट्रेट फॉर तो आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर रही हो, आप उसको एंटीवायरल थेरेपी या इंटरफेरॉन वगैरह, ये तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यू हैव टू मैनेज हर करंट प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है। अलबत्ता लिवर फंक्शन टेस्ट के इम्पेयर होने की सूरत में आप डेफिनेटली फिर फिजिशियन की ओपिनियन लोगे, क्योंकि इसमें फिर एनेस्थीसिया ड्रग का वो सारी मेटाबॉलिज्म वाली चीज आ जाएगी। तो मैम फिर इसका मैं मैनेजमेंट में तो इसका जिक्र नहीं करूंगी हेपेटाइटिस बी, मतलब देखो आप सिर्फ इतना सा ये कहोगे कि शी इज डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव with the impaired liver function test, for which I will seek opinion from a physician beforehand before the anesthesia in collaboration with an anesthetist. अगर इसका लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक आ जाते हैं तो फिर आप कहोगे कि दो शी इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव बट लिवर फंक्शन टेस्ट आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, so for that purpose and as is she is PCR positive, so definitely she need treatment, but after completing the treatment for her current problem she will be referred to a physician for the further management of hepatitis B infection. ठीक है। इसको फिर इस तरह से आप बताओ, आप मल्टीपल चीजें एक टाइम पे शुरू नहीं कर सकते। आपका मेन प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो उसका एक्यूट प्रॉब्लम है, इतना बड़ा अल्सरेटिंग जो फाइब्रोइड पॉलिप है, आपने उसको मैनेज करना है, आपने उसको मैनेज करके उसको घर भेजना है, ताकि उसके जो प्रॉब्लम है विजाइनल डिस्चार्ज के और इसके ये बाकी सब फर्टिलिटी वाली चीज तो जरा लॉन्ग टर्म चलेगी, लेकिन अभी जो इसका एक्यूट प्रॉब्लम है आप उसको तो मैनेज करें। और फिर इसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होगी उसमें ये सारी चीजें आएंगी, आप उसमें मेंशन करोगे। आपने सबसे पहले जब मैनेजमेंट आपसे पूछी गई तो फिर आपने रिस्क फैक्टर इसमें बताने हैं कि क्योंकि फिर आप जो है वो उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद तो इसका रिस्क फैक्टर में एक इसकी ओवेरियन सिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पहले आपको कहा गया कि रिस्क फैक्टर बताएं तो रिस्क फैक्टर्स में इसका जो है वो एक तो फाइब्रोइड पॉलिप आ जाएगा, उसके सिम्टम्स तो हैं ही हैं, लेकिन फाइब्रोइड पॉलिप आ जाएगा, इसका एनीमिया आ जाएगा, इसका हेपेटाइटिस बी स्टेटस आ जाएगा। और हेपेटाइटिस बी जो स्टेटस है दैट विल बी डेल्ट ऑन आफ्टर द सर्जरी इज ओवर। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक है तो, और अगर लिवर फंक्शन टेस्ट इम्पेयर्ड हैं तो फिर फिजिशियन की ओपिनियन तो इसमें जो है वो इस तरह से फिर आपने डिसाइड करना है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ कि इसको आपने किस तरह से फिर सेग्रीगेट किया जिसमें मजीद सवाल नहीं फिर होते। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि आपने एक उसका मसला जो जिसके लिए वो आई उसको तो पसे पुश्त डाल दिया और उसके आप क्रॉनिक प्रॉब्लम को लेके पहले चल पड़े, तो फिर उसमें जरा थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। And ma'am, I will after repeating her hemoglobin, depending upon the result of hemoglobin, I will correct her anemia. Ma'am, we can't hear you. हाँ ठीक है, फिर आगे। So, ma'am, I will correct. Ma'am, I will repeat her hemoglobin, and depending on the result of the hemoglobin, I will correct her anemia. और मैम फिर उसका भी मैम बीच में वर्कअप जाहिर है, अगर वो उसकी हीमोग्लोबिन कम आएगी तो देन आई विल प्रोसीड फॉर रेड सेल इंडिसेस फॉर वेरिफाइड ब्लड फिल्म फॉर सीरम फेरेटिन, and then I will correct her iron if it is found to be iron deficiency. हाँ ठीक है, चलो। तो इसमें जो है वो फिर आपने इसको हीमोग्लोबिन को जो है वो उस तरह से अपडेट करना होगा। आयरन इन्फ्यूजन लगा सकते हो, ब्लड को वैसे स्टैंड बाय रखोगे और लगा दोगे। इवन अगर हीमोग्लोबिन उसकी 9 भी आ जाती है तो यू कैन गो अहेड। तो अब इसमें
आता है कि आपने सर्जरी इसमें क्या करनी है? Ma'am, my plan is to do polypectomy with ठीक है। diagnostic. मैंने तो इसकी hysteroscopic guided DNC रखी, polypectomy with hysteroscopic guided DNC. अच्छा, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड, ठीक है, लेकिन इसमें पहले क्या करोगे आप? हिस्टेरोस्कोपी करोगे कि पॉलीपेक्टमी करोगे? मैं पहले पोलीपेक्टमी करूंगी एंड अब नाउ you cannot reach the pedicle in this case. Yes, ma'am. Ma'am, first of all, I will confirm my findings under anesthesia. Ma'am, I will confirm my. कहते हैं अभी शायद खुद से ही हो जाए। वॉइस बेटा इसलिए बार बार खत्म हो रही है कि वो इंटरनेट का इशू हो रहा है बार बार। अच्छा, इसमें जो अब क्योंकि इसका पेडिकल रीचेबल नहीं है, पेडिकल आपने कहा था कि वो रीचेबल नहीं है, तो उस सूरत में आपको क्या मसला हो सकता है? दिस कैन बी एंडोसर्वाइकल, क्योंकि एक्टोसर्वाइकल होता तो फिर उसमें हमें उसका तो जहां तक असेसिबल है उसका पेडिकल, वहां से आप रिसेक्ट करते हो, चाहे वो एंडोमीट्रियल एंडोसर्वाइकल हो और चाहे वो एंडोमीट्रियल हो विद क्योंकि जो इन्होंने फाइंडिंग्स बताई डॉक्टर किरण ने कि सर्विक्स सर्वाइकल जो उसके लिप्स हैं दैट आर पैल्पेबल ऑल अराउंड द ये जो है सर्वाइकल फाइब्रोइड पॉलिप, तो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ एंडोसर्वाइकल और एंडोमीट्रियल पॉलिप। उसमें मसला ये होता है कि उसका ब्रॉड पेडिकल होता है जिसको आप एवल्स करके नहीं निकाल सकते, सो यू हैव टू रिसेक्ट। तो इसको हम जल्दी जल्दी जरा वाइंड अप करते हैं क्योंकि बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस सूरत में जब ऐसा हो कि इसमें इंट्रा यूट्राइन है तो भी उसमें जहां तक आपको अप्रोच हो सकता है पेडिकल, वहां से काटो, उसको स्टिच कर दो या कॉटरी कर दो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एंडोमीट्रियम पे जाके उसको कॉटरी या स्टिच तो अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो तो फिर आप उसमें हिस्ट्रोस्कोपी करके और उसमें उसके पेडिकल को भी डील कर सकते हो और इसके अलावा उसकी डायग्नोस्टिक डीएनसी भी कर सकते हो, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस सर्जरी जो कि आपने इसके प्रॉब्लम के लिए की।
अब दूसरी चीज ये है कि इसमें आपने अब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ हर करंट प्रॉब्लम, जो कि उसके तो इसका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट आप करवाएंगे आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करवाने के वो हिस्टोसल्पिंगोग्राफी से प्रेफरेबली होगा। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है अब कि इसकी जो ओवेरियन सिस्ट है उसकी मॉनिटरिंग कैसी चल रही है। इफ देयर इज परसिस्टेंट ओवेरियन सिस्ट, तो ये तो आपको पता है कि विद कोएग्जिस्टेंट पेल्विक कोमॉर्बिडिटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये चीज हम डिसाइड करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, जिसमें रिपीट्स मैम हाँ जी, मेरी आवाज अभी तक पहुंची है जो मैंने सारा? नहीं मैडम, थोड़ा सा आया था, ज्यादातर नहीं आया। मैम पोस्ट ऑपरेटिव में बस HSG का प्लान आफ्टर 3 मंथ्स का पता लगा है। मैम प्री ऑपरेटिव मैम कितने नेक्स्ट चला गया। एंटीबायोटिक्स लेनी थी 72 आवर्स पहले 24। हाँ मैम मैम हाँ इस जी, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लेनी थी 8 आवर्स बिफोर सर्जरी। एंटीबायोटिक्स तो दोगे ना, वो तो रूटीन की पोस्ट ऑफ केयर है, रूटीन की पोस्ट ऑफ नहीं नहीं केयर है। मैम, मैम मैम बिफोर सर्जरी, हाँ जी, क्या? मैम ऑल्दो इसकी मैडम ऑल्दो अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ HVS उसकी बात कर रहे हो? सॉरी, विजाइनल डिस्चार्ज। यस मैम जाहिर है बिफोर सर्जरी से सर्जरी पहले हम एक मैम 48 आवर्स के लिए। आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है, व्हाट्सएप पे या इसी ग्रुप पे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। सिग्नल तो आ रहे हैं सारे में। ठीक है, मेरा ख्याल है हम डिस्कशन को